I'm here. This is my first foreign visit in 2026. I'm delighted to be with you during these festive times. I hope everyone celebrated Sankranti, Pongal, and Taipusam with great joy. Soon, the festival of Shivratri is coming. In a few days, Ramzan begins, and then Hari Raya will be celebrated with great devotion. I wish everyone happiness and good health. Friends, Malaysia has the second largest Indian origin community in the world. There is so much that connects Indian and Malaysian hearts. The exhibition that Prime Minister Anwar Ibrahim and I saw a short while ago shows this connection beautifully. You are living bridge that links us. You have connected Roti Canai with the Malabar Parota, coconut, spices, and of course, Teh Tarik. The flavors feel so familiar, whether it is in Kuala Lumpur or Kochi. We understand each other so well. It must be due to the large number of common words between our languages and Malay. I've heard that Indian movies and music are popular in Malaysia. You all know that Prime Minister Anwar Ibrahim sings very well. But many Indians back home did not know it. During his last visit, they were pleasantly surprised. Videos of him singing an old Hindi song in India went viral. It is wonderful that he also loves Tamil songs of the legendary MGR. Friends, I know that India has a special place in your hearts. I remember very clearly an instance from 2001 when there was an earthquake in my home state of Gujarat. Many of you came together to help. I thank you all. And even long before that, to make India a free country, thousands of your ancestors
made great sacrifice. Many of them had never seen India, but they were among the first to join Netaji Subhash Chandra Bose, Indian National Army. In his honor, we renamed the Indian Cultural Center in Malaysia after Netaji Subhash Chandra Bose. I also take this moment to salute the efforts of the Netaji Service Center and Netaji Welfare Foundation in Malaysia. Friends, it is remarkable the way you have preserved traditions over centuries. Recently, I spoke in my monthly radio conversation, Man Ki Baat, about you. I shared with 1.4 billion Indians how over 500 schools in Malaysia teach children in Indian languages. The influence of great saints like Tiruvalluvar and Swami Vivekananda can also be felt here. The Taipusam in Batu Caves last week was a divine that it looked like the celebrations at Palani. Equally grand are the cultural celebrations at Sri Venkateswara Temple, Bagan Dato. I am told that Garba is very popular here. We also deeply cherish the cultural connections with our Sikh brothers who live here. You have carried the teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji to this day by promoting Naam Japo, Kirat Karo, Vand Chako. Friends, we have people from all parts of India here. The threads of cultural unity bind us strongly. Our strength is we understand unity in diversity. Friends, Tamil is India's gift to the world. Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. And I proudly say, India's Vice President, Thiru C.P. Radhakrishnan ji, our Foreign Minister, Dr. Jaishankar ji, who is with us today, Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, who has presented our budget 9 times.
Dr. Murugan, our Minister of State for Information and Broadcasting, they are from Tamil Nadu. In the same way, the members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora has been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar Chair in the University of Malaya. We will now set up a Tiruvalluvar Center to further strengthen our shared heritage. Friends, our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. In 2024, during the visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to New Delhi, we elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. We celebrate each other's success just as our own. I was touched by Prime Minister Anwar Ibrahim's good wishes on the historic success of Chandrayaan-3. I agree with you, my dear friend. India's success is Malaysia's success. It is Asia's success. That is why I say the guiding word of our relationship is impact. Impact means India-Malaysia partnership for advancing collective transformation. Impact on the speed of our relations. Impact on the scale of our ambitions. Impact for the benefit of our people. Together, we can benefit the entire humanity. Friends, Indian companies have always been keen to work with Malaysia. It is a privilege that we played a part in creating Malaysia's first and Asia's largest insulin manufacturing facility. Over 100 Indian IT companies operate in Malaysia, generating thousands of jobs. The Malaysia-India Digital Council is paving new pathways for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. Friends, we share the same blue waters of the Indian Ocean. Across the ocean, we love to visit each other. I invite you all to visit different parts of India. In the past few years, India has seen unprecedented growth
in infrastructure and connectivity. The numbers of our airports had doubled in a decade. Highways are being built at a record pace. Modern trains like Vande Bharat are getting international acclaim. I encourage more of you to travel and experience incredible India. You must also bring your Malay friends with you. Don't come alone. Because people to people connect is the cornerstone of our friendship. Friends, when we met in 2015, I spoke to you about India's potential. Now, I speak to you about India's performance. In one decade, India has seen a massive transformation. Then, we were the 11th largest economy in the world. Now, we are knocking on the doors of the top 3. We are also the world's fastest growing major economy. Then, Make in India was a sapling that was just planted. Now, India is the world's second largest mobile manufacturer. Our defense exports have gone up nearly 30 times since 2014. India has also become the third largest startup hub in the world. We have built world's largest digital public infrastructure and the world's largest fintech ecosystem. Nearly half of the world's real-time digital transactions happen in India. Thanks to our UPI platform. While growing fast, we also ensured that our growth is clean and green. For example, in one decade, our solar energy has grown about 40 times. Friends, earlier, India was seen just as a huge market. Now, we are a hub for investment and trade. India is seen as a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia,
New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. Friends, India will always embrace you with open arms. That is why we made a historic decision just a few months ago. We extended the OCI card eligibility to Malaysian citizens of Indian origin up to the 6th generation. We have been supporting the Indian Scholarship Trust Fund. Now, we are also going to give Thiruvalluvar Scholarship for students to study in India. And we look forward to seeing you in the Know India program. You will be happy to know that we will soon be opening a new consulate of India in Malaysia. This will bring us even closer. Friends, 1.4 billion Indians want to build a developed India by 2047. विकसित भारत बनाना है ना? विकसित भारत बना के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम अपने सपनों को साकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सपनों को संकल्प में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम संकल्प को सिद्ध करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? In this journey, our Pravasi Bhartiyas, the Indian diaspora, is a valuable partner. Whether you were born in Kuala Lumpur or Kolkata, India lives in your hearts. You are an active part of Malaysia's and India's progress. You will help realize the vision of prosperous Malaysia and Viksit Bharat. Jumpa lagi. Mikka Nandri.
Distinguished guests, please join me in thanking His Excellency the Prime Minister of Malaysia and His Excellency the Prime Minister of India for sharing their precious time with us. Please give a round of applause as the esteemed Prime Ministers will be departing the venue. काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का संबोधन वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी वहां पर अपना संबोधन भारतीय समुदाय के लोगों को किया। काफी महत्वपूर्ण ये संबोधन था। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो आसियान सम्मेलन के दौरान मैंने मलेशिया आने का वादा किया था, लेकिन उस समय नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम अनवर के द्वारा दिया गया सम्मान उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2026 में ये मेरी पहली विदेश यात्रा है और आप सभी के साथ आकर बहुत खुशी हुई। और प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया कि दुनिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या के मामले में मलेशिया दूसरे स्थान पर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच सेतु का कर रहे हैं काम। ये प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा। और पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास और संघर्ष में भारत मलेशिया साथ साथ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया में विविध भारतीय सांस्कृतिक उत्सव की दिखती है झलक। यकीनन भारतीय कला संस्कृति देशों को जोड़ रही है आज, और विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न भाषाओं में सभी का अभिनंदन किया शुरुआत में, और मलेशिया में तमिल समुदाय का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में वो समाज की सेवा कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम साझा विरासत को और मजबूत करने के लिए तिरुवल्लुवर सेंटर बनाएंगे। बिल्कुल, तिरुवल्लुवर सेंटर बनाया जाएगा, और उसके अलावा भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है, ये प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा। और साथ ही साथ पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि यूपीआई जल्द मलेशिया में होगा उपलब्ध। ये काफी महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने कहा कि मलेशिया में भारतीय निवेश से विनिर्माण और हजारों रोजगार वहां पर पैदा होते हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक में भारत का अभूतपूर्व प्रदर्शन है। शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले हमने पोटेंशियल की बात की थी, आज हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण हब आज बन चुका है। साथ ही भारत में सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश और व्यापार का विश्वसनीय केंद्र है आज भारत। भारत और मलेशिया के रिश्ते नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भारत आपके दिल में जीवित है, आप मलेशिया के सक्रिय भागीदार हैं। भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यकीनन तमाम अहम बातें कही। इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने किया। आइए एक बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया पहुंचने पर किस तरह से भव्य स्वागत हुआ। Yeah, I would like to welcome Narendra Modi ji to Malaysia. I love Modi. We are here to support Modi ji. We love Modi ji. यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से हम खड़े हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे मिलने की बहुत चाहत है। Hello Modi ji, welcome to Malaysia, and I've been waiting for 1 hour to see you right now. Can't wait to see you. Yeah, I would like to welcome Narendra Modi ji to Malaysia. I love Modi. We are
are here to support Modi ji. We love Modi ji. यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से हम खड़े हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलने की बहुत चाहत है। Hello Modi ji, welcome to Malaysia, and I've been waiting for 1 hour to see you right now. Can't wait to see you. Yeah, I would like to welcome Narendra Modi ji to Malaysia. I love Modi. We are here to support Modi ji. We love Modi ji. यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से हम खड़े हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलने की बहुत चाहत है। Hello Modi ji, welcome to Malaysia, and I've been waiting for 1 hour to see you right now. Can't wait to see you. तो आपने देखा किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो भारतीय समुदाय के लोग हैं और साथ ही साथ जो मलेशिया के लोग हैं उनमें कितना उत्साह था प्रधानमंत्री के इंतजार को लेकर के। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री ने वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस पर अभी हमारे खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया और वहां पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर राजीव भाटिया, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं जीएनयू से। सबसे पहले एम्बेसडर भाटिया, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी प्रधानमंत्री ने वहां पर अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बड़ी अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई है इस समारोह के साथ। इस समारोह का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा आप पहले पूछ ही रहे थे कि किस तरह से भारत के मूल के लोगों का जो योगदान मलेशिया के विकास में रहा है, उस बात को पूरी तरह से ये प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहली चीज़ तो नोट करने के लिए ये है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब खुद मौजूद थे वहाँ पर। पहले बहुत दफ़े जब प्रधानमंत्री जाते थे मोदी जी, तो कई दफ़े जो स्थानीय नेता थे वो नहीं आते थे और कहा भी गया कि ये कम्युनिटी फंक्शन है, मगर अब लगता है कि दोनों तरफ से उच्च स्तर के नेता वहाँ पर होते हैं ताकि और ज़्यादा एक सहयोग की और मित्रता की भावना को दर्शाया जा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अनवर इब्राहिम साहब के भाषण में कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई जी। उन्होंने स्वयं न केवल ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया, मगर विशेष रूप से वर्तमान हालात को देखते हुए ये कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने
मलेशिया के विकास में एक मौलिक भूमिका अदा की है। ये एक बड़ी विशेष बात है, मैं समझता हूँ। ये इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर हर तरह से वहाँ की सरकार हमारे लोगों के योगदान को मान्यता देती है। और तीसरी बात खास तौर से ये कि बराबर जो मैं पहले कह रहा था कि दोनों नेताओं में एक बहुत घनिष्ठ संबंध बन चुका है, बराबर इब्राहिम साहब ने मोदी जी को एक अपने व्यक्तिगत मित्र के रूप में बताया, दर्शाया, और ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सवाल है, वो आपने पहले से ही उसके मुख्य बिंदुओं को बता दिया है। और हमेशा इस किस्म के समारोह में विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रभाव डालते हैं। मगर आज मैं समझता हूँ विशेष रूप से शायद उन्होंने सुन लिया था आपको कि तमिल इम्प्रिंट का क्या महत्व है, तो उसके बारे में उन्होंने काफी बातों को विस्तार से बताया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि भारत के जो मूल के लोग हैं वो जरूर इस बात से प्रसन्न होंगे कि एक हमारा कॉन्सुलेट और खुलेगा वहां पर, और इससे उनके लिए आना जाना, उनकी और जो सुविधाएं, कॉन्सुलर आवश्यकताएं होती हैं, वो आसानी से पूरी हो सकेंगी। तो ये मात्र एक समारोह नहीं है, ये मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, उसके जरिए और जो स्टूडेंट्स वहां से आएंगे उनके लिए एक थिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की भी वहां पर वो आपने ऑलरेडी उसका उल्लेख किया है, बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, साथ जिस तरह से हमने देखा इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन और जो तस्वीरें हमें मिली इस कम्युनिटी इवेंट से, यकीनन भारत और मलेशिया के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत हम कह सकते हैं सिर्फ व्यापार और रणनीति नहीं है, बल्कि वहां मौजूद लोग हैं, लोगों का जुड़ाव और जो साझा संस्कृति और विरासत हम देख रहे हैं। तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से देखते हैं आप, अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री ने शुरुआत जो की, अपने अभिनंदन किया वहां मौजूद लोगों का, तमाम अलग अलग भाषाओं में किया उनका स्वागत, और बहुत ज्यादा जोश नजर आया। क्या कुछ हाईलाइट आप देखते हैं, हाईलाइट रही प्रधानमंत्री के संबोधन की? जय जी, विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये करते हैं कि एक तीर से कई शिकार करते हैं। तो उन्होंने जहां पे विविधता की, भारत की विविधता की बात की और डायस्पोरा की विविधता की बात की, साथ में उन्होंने मलेशिया की भी बात की। मलेशिया भारत की ही तरह एक बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मिक देश है। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होने की वजह से वहां भी उठापटक चलती रहती है, विपक्ष भी है और उसकी अपनी समस्याएं भी हैं, जैसा कि हम न्यूज में देख रहे हैं। तो पहली चीज ये है, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आना, एक सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि भारतीय जो लोग हैं, कम्युनिटी जो है, उसको उन्होंने अपने ब्रदर्स और सिस्टर कहा। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में जब इको हुई तो ये एकदम साफ हो गया कि दोनों देशों के नेता तमाम ये जो कम्युनिटीज की बात है, जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की बात है, उसमें चाहते हैं कि समरसता बनी रहे। भारतीय डायस्पोरा का एक सक्रिय योगदान मलेशिया के सोसाइटी में हो और साथ ही साथ भारत के विकास में हो। तो जो उन्होंने बात कही कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता और एशिया की सफलता है, और इस पे जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी, मुझे लगता है उससे बहुत स्पष्ट है कि सामाजिक समरसता पे बहुत ज्यादा फोकस है। और इसी संदर्भ में तमिल जो वहाँ समुदाय है उसकी भी बात हुई है। साथ ही मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इम्पैक्ट के बारे में, कि एक सिर्फ इतिहास और सिर्फ कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे ही नहीं, उससे कैसे हम विकसित भारत और प्रॉस्परस मलेशिया का जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको कैसे हम मीट करें। तो इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, इम्पैक्ट की, वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है इसमें एक पहलू है। इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं, फार्मा या पाम ऑयल, इससे आगे निकल के हम सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा चुके हैं। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कहा कि अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड के बारे में जो दोनों देशों के बीच में बात चल रही है, मुझे लगता है शायद एक ट्रेड डील भारत और मलेशिया के बीच में होगी। तो तमाम पहलुओं पे जो दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने बात तो आम जनता के लिए की, लेकिन उसमें बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो विदेश नीति के जानकारों के लिए और विदेश नीति के जो निर्धारक हैं उन लोगों के लिए एक सिग्नल था कि जो अभी तो शुरुआत है, सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया है। आगे जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे
इससे परिणाम आने वाले हैं। दोनों ही देशों के नेता इस बात को भी उन्होंने अपनी अपनी तरह से हाईलाइट किया कि अब हम एज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या वॉइसेस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर वॉइसेस ऑफ कोऑपरेशन को महत्व देना है। दोनों ने ही बार बार अपनी दोस्ती को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। मलेशिया का इस साल उनका है मलेशिया विजिट मलेशिया 2026, जो उनके पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक गोल है। उसमें भी भारत का एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो एजुकेशन सेक्टर, वो तिरुवल्लुवर सेंटर जो यूनिवर्सिटी मलाया में स्थापित करने की बातचीत हो रही है, पहले ही वहां पे तिरुवल्लुवर चेयर यूनिवर्सिटी मलाया में है, जहां मैं 7 साल मैंने काम किया जी। तो मुझे लगता है कि उससे काफी उत्साह जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसमें है, और कल्चरल कनेक्शन के साथ साथ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आम आदमी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियंस को जोड़ने की जो बात है, मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और मलेशिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा साझेदार आसियान क्षेत्र में निकल के आएगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि क्रिटिक्स बार बार ये बात कहीं ना कहीं आती है क्रिटिक्स के तरफ से कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में सिर्फ बातें हैं और काम नहीं है। आज प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस बात को वेरीफाई किया कि पिछले 12 सालों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लॉन्च की, तब से भारत और मलेशिया के संबंधों में व्यापक और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया है। तो एक ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, मित्र देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आना कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति कितनी सफल हुई है और इसने द्विपक्षीय संबंधों में, खासतौर पर यहाँ भारत और मलेशिया के संबंधों में कितना व्यापक परिवर्तन लाया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट दोनों ही प्रधानमंत्रियों की तरफ से जो आए हैं वो बहुत ही नपे तुले और बहुत ही गागर में सागर जैसी बात कहने वाले हैं। राहुल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और काफी महत्वपूर्ण आपने जो प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा है उसका विश्लेषण भी किया। और दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उनके साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी वहां पर मौजूद थे और उससे पहले प्रधानमंत्री मलेशिया पहुंचे थे। खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे इस वक्त हमारे 2 नए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU, आप भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत आइए करते हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सर आपके पास आना चाहूंगी। भारत और मलेशिया के रिश्तों को यहाँ पर एक नया मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक नया नाम दिया है, वो है इम्पैक्ट। इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तमाम अहम बातें रही प्रधानमंत्री के संबोधन की, कई हाई पॉइंट्स रहे। किस तरह से देखते हैं आप जो इस वक्त की तस्वीरें लगातार जो हमें मिली, आज पहला दिन है प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, एयरपोर्ट डिप्लोमेसी से लेकर कम्युनिटी रिसेप्शन तक वहां पर जो उनका संबोधन रहा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया आएगी? पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो लुकिंग थ्रू द डिप्लोमेटिक प्रिज्म जिसे हम कहते हैं कि एक तो प्रोटोकॉल ब्रेक करके प्रधानमंत्री ने उनको रिसीव किया, उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि प्रोटोकॉल ब्रेक करके वो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके साथ उनको जो उन्होंने संबोधित किया वहां भी वो थे और उनका जैकेट भी बड़ा सुंदर था। मुझे लगता था कि कोई सैटिन कलर का अच्छा जैकेट उन्होंने बनवाया होगा इसके लिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों मतलब इंडिकेटर्स हैं कि भाई आगे और भी कुछ हमें पॉजिटिव मतलब आने वाला है। और ये एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसकी भी बात हुई है कि उसको किस तरह से हमने प्रधानमंत्री के आने के बाद उसका, जैसे पहले तो था हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक्ट ईस्ट बनाया। तो एक्ट का मतलब यही है कि उसको और रोबस्ट और उसमें और मतलब जो मुद्दे हैं उनको जोड़ के, नेचुरली ट्रेड है, बहुत कुछ है मलेशिया के साथ। और हमें आजकल तो मालूम ही है सबको कि ट्रेड का कितना महत्व हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं,
क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पूरा जो मतलब ट्रेड का जो माहौल था उसको बिगाड़ दिया है और उनको अब टैरिफ से वो सबको मतलब बायलैटरल डील्स करना चाहते हैं। जो WTO का MFN रजीम है उसको तो वो तो तितर बितर कर दिया उन्होंने। तो अब ये सब देशों को इसमें एडजस्ट कर रहे हैं सब लोग, हम भी कर रहे हैं, हमने भी ट्रेड डील्स कर ली है EU के साथ। अब मुझे लगता है मलेशिया के साथ भी एक खास ट्रेड डील होने वाली है। मलेशिया के साथ और भी कई एरियाज हैं जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो नेवल एरिया है जो महासागर वगैरह उसका जो हमारे उद्देश्य है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ पर। मलेशिया हमारा नेबर है, मैरीटाइम नेबर है, क्योंकि अंडमान सी के वहाँ उनकी जो मलाक्का स्ट्रेट्स है वो उनके पास है, तो दे आर ऑलमोस्ट अ मैरीटाइम नेबर। तो मलाक्का स्ट्रेट जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, तो उधर रिवर कोऑपरेशन होने से हम लोगों को वहाँ पे मतलब हम देख पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ से बहुत सारा ट्रेड भी जाता है हमारा, और इधर इस साइड भी जाता है। 60% ट्रेड जो है इंडियन ओशन से गुजरता है और मलाक्का स्ट्रेट से भी काफी गुजरता है। तो ये सारी चीजें लेकर जो अगर आप देखें ओवरऑल व्यू, एक स्ट्रेटेजिक व्यू ले, तो मलेशिया तो काफी इम्पोर्टेंट है जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली। आसियान का अच्छा इम्पोर्टेंट मेंबर भी हैं, और फिर भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ पे तमिल भाषी हैं मोस्टली, जो पहले गए थे वहाँ बस गए थे, ब्रिटिश लोग ले गए थे उनको। और उसके बाद जो बाकी स्किल प्रोफेशनल्स वगैरह है, टूरिज्म पे काफी जोर मुझे लगता है दिया जाएगा। ये बहुत सारी फ्लाइट्स भी बढ़ रही हैं, यहाँ के लोग भारत के लोग काफी टूरिस्ट मतलब इस साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। थाईलैंड तो है ही है जो बहुत पॉपुलर है, अब मलेशिया भी लगता है, मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह भी बहुत पॉपुलर होगा, वियतनाम भी काफी पॉपुलर हो चुका है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सारी बातें मिलाकर तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ये प्रधानमंत्री का शायद तीसरा विजिट है, और उन्होंने प्रधानमंत्री भी विश्वास करते हैं एक व्यक्तिगत डिप्लोमेसी जिसे हम पर्सनल डिप्लोमेसी जो कहते हैं जी। तो उसमें सर डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही जो मलाक्का स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर कुमार, व्यापार के बारे में अभी हम बात करेंगे, दूसरे जो कल्चरल रिलेशंस की बात करेंगे, टूरिज्म को लेकर के बात करेंगे, लेकिन अगर रणनीतिक रूप से हम देखें, भारत की जो चुनौतियां हैं उसको देखें, तो हमारे दर्शकों को किस तरह से आप समझाएंगे कि ये जो मलाक्का स्ट्रेट है इसको लेकर के मलेशिया के साथ भारत के संबंध, जो रणनीतिक साझेदारी है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? मैं शुक्रिया चंद्रशेखर जी मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मलाक्का स्ट्रेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए। और अगर जियोपॉलिटिकली बात करेंगे तो मलाक्का स्ट्रेट बहुत ही 50 किलो उसकी चौड़ाई जो देखेंगे, जो ऊपर में आप देखेंगे मलेशिया है, नीचे में इंडोनेशिया का जो क्षेत्र आता है, तो लगभग 50 किलोमीटर का वहाँ पे चौड़ाई होती है, और वहाँ पे सारे शिप्स जाते हैं। चाहे मैं चीन की बात करूँ, जापान की बात करूँ, या जो दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अमेरिका का भी, तो वो ट्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। लगभग बताया जाता है कि लगभग 40% तक हो सकता है, इससे ज्यादा भी होगा। जो 40% ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से हो रहा है। और उसके बाद चीन का लगभग 25 से 30% जो एनर्जी का इंपोर्ट होता है उसी रास्ते से होता है। और आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि निकोबार आइलैंड में हम कैसे वहाँ पे उसको एक मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि वह जो क्षेत्र है वह हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से एक तरह से जो जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, खासकर इंडो पैसिफिक में बात होती है, तो उसमें आपको चीन का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको समझना जरूरी है, और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो चीन का है उसको समझना जरूरी है। लेकिन चीन का सबसे जो एक तरह से चोक पॉइंट बोला जा सकता है मैरीटाइम के हिसाब से, वह है अभी मलाक्का स्ट्रेट का पॉइंट, क्योंकि वहां से उसका एनर्जी का ट्रेड होता है, और वहां अगर इफेक्ट होता है तो चीन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो चीन के लिए भी वह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और उधर अब साउथ चाइना सी देखेंगे तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के जो ट्रेड होते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से, चीन से, जापान से,
वह भी उसी रास्ते से होते हैं। और वैसे में हमारा जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है वह होना जरूरी है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं प्योर जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो जो मलेशिया है और वो जो क्षेत्र है पूरा 3-4 कारणों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि वहाँ पे हमारे डायस्पोरा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट, डायस्पोरा कई जगहों पे है। और जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि मलेशिया में भी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लगभग 27 लाख लोग के आसपास है जो PIO है। और अगर मैं डायस्पोरा की बात करूँ तो लगभग उस 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख के आसपास होगा जी। और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, तो उस दृष्टिकोण से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि आसियान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है, अगर आप अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन और उसके बाद अगर बात करें तो 125 से 130 बिलियन के आसपास या उससे ज्यादा भी हमारा उसके साथ ट्रेड होता है। तो वह रूट जो मलक्का का रूट जिसकी बात की, तो उसका माध्यम तो वही है, उसी रास्ते से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मलक्का स्ट्रेट का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मलेशिया के साथ और नीचे इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी हैं। सिंगापुर के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी सीधे मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संबोधन की काफी हाईलाइट रही और उन्होंने लिविंग ब्रिज कहा। वहां मौजूद जो भारतीय प्रवासी हैं, जो वहां भारतीय मूल के लोग हैं, किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र? पीएम ने भारतीय संस्कृति, त्योहारों और विरासत की भी बात कही और बहुत ज्यादा जोश वहां पर देखने को मिला। शैलेंद्र से हम बात थोड़ा करेंगे, सा वहां पर बिजी हैं, ये बताया शैलेंद्र जा से रहा हम है, बात इसलिए करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती सर, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और फिनटेक का जिक्र भी किया। बहुत जल्द जो भारत का UPI है वो यहाँ पर मलेशिया पहुंचेगा। किस तरह से देखते हैं कि मलेशिया में जो भारतीय प्रवासी है, जो वहां के प्रोफेशनल्स हैं, अब वो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार के रूप में भी उन्हें देख रहे हैं यहाँ पर, और जो भारत की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो भारत ने जो परंपरा की शुरुआत की है, अब उसका एक्सटेंशन मलेशिया में भी देखने को मिलेगा। देखिए, UPI सिस्टम तो काफी जगह फैल चुका है, क्योंकि जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं उनके कनेक्शंस तो इंडिया में है ना, उनके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं वो आना जाना करते हैं, पढ़ाई करते हैं इंडिया में आके। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे हॉस्टल में कई मलेशिया से लोग, लड़के हमारे साथी जो थे वो पढ़ते थे हमारे साथ। तो ये सारी चीजें जो है, अब मनी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो UPI अगर चालू हो जाए तो बहुत सुविधा होगा। अगर जो टूरिज्म के लिए होगा, बहुत सारी चीजों के लिए होगा, जो मलेशियन टूरिस्ट यहाँ आएंगे या बिजनेसमैन आएंगे, कोई भी आएगा, तो उसको पेमेंट करने में आसानी होगी। अपना डेली कुछ जो भी चीजें हैं जो पेमेंट करना पड़ता है, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मलेशियन कंपनीज भी यहाँ का काम करते हैं, काफी मलेशियंस यहाँ पे हैं, इंडिया में भी उनका इन्वेस्टमेंट्स भी है ऑयल सेक्टर में। और वो मतलब हमारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें मलेशियंस कंपनीज ने काफी मतलब भागीदारी की है। कई, अब मुझे याद नहीं है कितने किलोमीटर उन्होंने बनाया है इंडिया में, भारत के कंपनीज भी वहां है। तो इनको सबको सुविधा हो, क्योंकि ये जो मनी ट्रांसफर है ये UPI मेथड से इतना आसान हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें अगर मलेशिया आ जाता है तो ये एक्सपेंडिंग होगा। ऑलरेडी UPI जो अब दुनिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम हो गया है, और सिर्फ वीजा भी सबसे नंबर 1 पे है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी, क्योंकि ये, और दूसरी बात है कि जो कल्चरल एस्पेक्ट है, देखिए आप जैसे आप देख रहे हैं कि डांस हो रहा है, और नेचुरली थोड़ा सा साउथ इंडियन क्लासिकल उसमें झलक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब ये लोग आते हैं इंडिया में डांस सीखने, वो उनके लिए भी आसान हो जाएगा UPI सिस्टम। तो ये मैं समझता हूँ। और जो डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो हैं, अभी हमको तो पता ही है कि हम जिस दिशा में जा रही है वहां पे AI बन रहा है और बहुत कुछ सारी चीजें बन रही है।
तो उसमें हम लोगों को तो नेचुरली कोऑपरेशन के माध्यम से इंडिया में काफी उसके लिए, जैसे आईटी में इंडिया का काफी नाम है, तो उसमें कोऑपरेशन हो सकता है और होगा भी, मुझे लगता है, क्योंकि कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, वहां से हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वहां जाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमको आगे देखकर, मतलब फ्यूचर की तरफ देखकर ये सब काम हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार, अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो पाम ऑयल का सबसे ज्यादा नाम आता है और पाम ऑयल कहीं न कहीं दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है। लेकिन आगे बढ़ना है, दूसरे क्षेत्रों की बात करें और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तकनीकी की हम बात करें, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल की हम बात करें या एआई की हम बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, इन क्षेत्रों में दोनों देश किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, कितना स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसा कि हमारे एम्बेसडर साहब ने बताया अभी कि जो फिनटेक है उसमें जिस ढंग से हम कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मलेशिया में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन, जो रेजिलियंस की हम बात करते हैं। जिस ढंग से चीन ने पूरी रेयर मटेरियल और उसके बाद जिस ढंग से उसका दबदबा है, और अमेरिका का जो चिप्स हैं उस पर जिस ढंग से दबदबा है, तो उसके बाद अगर हमेशा ये डर बना रहता है देशों को कि अगर ये दोनों सप्लाई करना बंद कर दें तो क्या होगा, और ये दोनों ऐसी धमकी दे चुके हैं कई देशों को। तो वैसे में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मलेशिया ने काफ़ी प्रगति की है, मैं बता दूं। और प्लान यह भी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, और अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें देखेंगे कि खासकर प्रोसेसिंग के सेक्टर में, जो सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग यूनिट्स इत्यादि के क्षेत्र में, और उसका फिर टेस्टिंग के क्षेत्र में, इसमें मलेशिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और मुझे लगता है कि उसमें भारत और मलेशिया के साथ आने की काफ़ी संभावना है। और फिर जो एआई का क्षेत्र है, एआई का क्षेत्र में अभी जो दबदबा है, आप जानते हैं कि अमेरिका का दबदबा है, और दूसरी तरफ चीन भी डीप सीक इत्यादि और जो अल्टरनेटिव उनका है वह डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बाकी देश हैं वो, उनको कई बार डर लगता है कि एक तो कि उसके माध्यम से वो डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच में मलेशिया और इसमें जो चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन स्किल्ड और जो सॉफ्टवेयर स्किल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों देशों में जो डेटा सेंटर्स हैं, और लोकलाइज डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी संभावना होती है। और खासकर जो मिडिल लेवल कंट्रीज हैं उनमें आपस में सहयोग डेटा इशू को लेके, एआई को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके, और अस्योर्ड जो सप्लाई सिस्टम होता है उसको लेके, तो मुझे लगता है कि इनमें काफ़ी सहयोग की संभावना है। और इसके अलावा आप देखें कि जो साइबर इशू है अभी के टाइम पे, साइबर क्राइम से लेके जो साइबर कॉपरेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना बनता है। और दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मैं बता दूं, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होते हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हुए हैं, एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज हुए हैं, तो उससे भी रिलेटेड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इत्यादि का जो प्रयोग होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जो कॉपरेशन हो सकता है। तो इन सारे क्षेत्रों में मैं बताऊं कि दोनों देशों में काफ़ी कॉपरेशन की संभावना है। और प्रधानमंत्री का अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा जो मीटिंग के 2 दिन की मीटिंग के बाद, उसमें आप देखें कि इसका खासा उल्लेख होगा कि दोनों देश जोर दें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे ये इंटीग्रेट करने की, कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर कुमार ने रक्षा क्षेत्र का भी जिक्र किया, जिस पर खासा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। चक्रवर्ती सर, यहाँ पर रणनीतिक सहयोग में बात हो रही है, तो इस यात्रा में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने पे भी खासा फोकस यहाँ पर रहेगा दोनों देशों का। अगर हम बात करें डोनियर विमानों की बिक्री हो या फिर स्कॉर्पियन पनडुब्बी या SU-30 विमानों की रखरखाव की चर्चा अगर भी इसमें शामिल होती भी नजर आएगी, किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र में दोनों देश कैसे एक अगले पड़ाव पर हम जा सकते हैं? मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है मलाक्का स्ट्रेट्स के बारे में, जो नेवल डोमेन है उसकी जो महत्व, मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जब अगर आप नेवल डोमेन या जो मतलब जो मैरीटाइम डोमेन को देखें, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि वो नेवी के साथ हमारी कोऑपरेशन हो रही है। और ये भी हमें पता है कि मलेशिया के पास रशियन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। अब उसकी सर्विसिंग वगैरह वो रशिया के साथ शायद हमारा समझौता भी है कि उसका सर्विसिंग वगैरह हम लोग करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास उसकी काबिलियत है। हमने बहुत सालों से सोवियत, फिर उसके बाद रशियन एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे इन्वेंट्री में रह चुका है। और एक और चीज थी जी सबमरीन की जो बात थी,
अब इंडिया भी उसमें